A very good morning to all guests, dignitaries, my fellow workmates, and my dear students. I, Ritika Chaudhary, welcome you all on the behalf of Technia Institute of Advanced Studies, which is a leading institution of academic services. I feel privileged to extend my warm welcome to all presented here for this knowledge enhancing webinar titled Interactive Session with Successful Entrepreneurs and Leaders. The webinar is being conducted by IIC, Institutional Innovation Council of Technia Institute of Advanced Studies. It is a council to shape and reform students' skills and knowledge for successful implementation of new ideas and innovations, and to shape their wings to fly the new arena of innovation world. For the welcome address, I would like to welcome our Honorable Director, Dr. Ajay Kumar Rathore. Dr. Ajay Kumar has collected more than 22 years of experience in his bucket and in the field of education and industry. Dr. Rathore has conceptualized and conveyed more than 30 national and international conferences and has attended several conferences as a guest of honor too. He has provided his guidance to many doctoral students as well. Dr. Rathore has also provided consultancy services to industries like LIC of India. He is also a member of All India Management Association and alumni member of Institute of Management Studies and Research, MD University Rohtak. Dr. Rathore presses towards his aim to work innovatively for the betterment of education. This session is being possible because of Dr. Rashmi Gujarati ma'am. She is currently supervising as a chairperson of IIC Council of Technia Institute of Advanced Studies. Rashmi ma'am is a researcher, educator, and administrator. She has a good mentioned fields and has published around 110 research papers in different national and international conferences, journals. She continues to provide her services in several national and international boards and groups associated to research and management. Thank you, ma'am, for your valuable support. Director, sir, I would like you to provide us the welcome address for our guest as well. Okay. Uh, First of all, I would like to give the good morning, and I'll take this opportunity to extend my special welcome to star-studded panel on the occasion of webinar by Technia Institute of Advanced Studies, Institution Innovation Council, in association with Bharatiya Navyuva Foundation, with our associate Sanskriti University, UP, Vision Institute of Advanced Studies, Haryana, and Apna Parivar Global, a corporate entity of more than 125 corporate leaders. This topic, interactive session with successful entrepreneurs and leaders. At the onset, I welcome our eminent speakers of the webinar, our chief guest. He will be joining on that, Padam Shri Hansraj Hansi, Member of Parliament Lok Sabha, a versatile Punjabi singer. He has given his nod. He will be joining. Dr. Mr. Shiv Shankarji is looking forward for that. He is a member of Bharatiya Janata Party and recipient of civil honor for Padam Shri. Dr. Abhishek Tandon, Deputy Director ICSSR, Government of India, and also the faculty, Shahid Sukhdev College of Business Studies, Delhi University. Miss Anuradha Bhatwal, Woman Empowerment Coach and the special motivational speaker. Miss Shrimati Devi Chitralekha ji, a very prolific, advanced, motivational speaker, spiritual leader, healer, woman empowerment. She is from Palwal, Haryana, and she has got enormous fan following throughout India in this region, especially in the northern belt of India. And she been able to transform many persons in the society in general. So I'm looking forward for great interaction with the students, Devi Chitralekha ji, because Ministry of HRD has given this mandate under the universal human values which they have introduced this time, and for the every faculty member and every student, this is going to be a in thing, and without this course will not be completed. So meditation and the human values which we have lost in the previous few years, that has to be revived again.
a very big responsibility on the shoulder to make the younger generation understand what India stands for and what Bharat stands for, and where we are lacking in our previous culture, which we are going to be eloped very soon. Not but the least, Professor Dr. Ram Kailash Gupta ji, our chairman, a man of many facets with immense energy and never-ending potential, a great philanthropist and founder of Apna Parivar Global, and recipient of Haryana Ratan Award, West Ratan Award, Delhi Ratan Award, and Ram Dhari Singh Dinkar Award for Sahit contribution. He he is Dr. Chairman of our Technia Group of Institution, a doctorate in management, successful entrepreneur, philanthropist, social conscientious individual, fully devoted in transformation of more than 800 NGOs, seeking professional advices, including Maharaja Agrasen Institute of Technology, Maharaja Agrasen Hospital, Maharaja Agrasen Hospital for Health and medical programs. He has widely traveled across the globe and given delivered lectures and on meeting on consultations and conferences in UK, USA, China, Japan, and so on. He has written down many books which has transformed the younger generation. Few of them over here, which are the significant for contribution, secrets of business success. Then one, he has put in over Rajniti, how the today's Rajniti is taking shape, and the Ashtavakra for rehabilitation, Manav Kalyan for the special child and special people. So ek kadam Manav Kalyan ki or, this is the another dimension of our chairman sir. And lastly, we can say which the every entrepreneur requires, self confidence, gateway to success. How sir has achieved that through the self confidence. He has given his own memories and thought process over here, and it's going to be a guiding pillar. And every entrepreneur, a successful person, or a startup venture capitalist should read these books, so that they can be able to shape their future. Uh, I feel that the institute, the Technia Institute of Advanced Studies, is one of the premier institutes set up under the aegis of Health and Education Society in 1999, and it's been accredited with A grade institute, duly approved by All India Council of Technical Education and affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, and also recognized by UGC under 2F conditions. Since 1998, this institute is doing various activities in academic administration, research and consultancy, and extension activities for the general public, and it's imparting education in MBA, BBA, BCMC, and BCA programs. This particular event is been set up under the council. Ministry of HRD has given a special status to our institution innovation council. Only 500 institutes throughout India has been given this particular cell, Institutional Innovation Council, and under this setup we are organizing today's event. And I feel it, Dr. Rashmi Gujarati, to take the proceedings further in the dimensions. Abhishek Tandon ji is Deputy Director ICSSR, Government of India, and faculty, Shahid Sukhdev College of Business Studies, Delhi University. Please, Madam, welcome Shri Abhishek Tandon ji. Ritika Chaudhary, please, ma'am. Sure, sir. Now I would like to invite Dr. Abhishek Tandon. Mr. Tandon is providing his valuable services as Deputy Director at ICSSR. Apart from that, he is also providing academic services to different colleges affiliated to University of Delhi as a visiting and as a regular faculty too. He has collected an experience of more than 10 years. He has been awarded as the best teacher by Government of NCT of Delhi in 2016, and also has been awarded prestigious UGC BSR Meritorious Students Scholarship, and by Society of Reliability as well. Dr. Abhishek, please endorse us with your extensive knowledge. Thank you, Madam Ritika, Dr. Ajay, Director Sir, Dr. Ram Kailash ji. It is great to hear so much about you, the Honorable Chairman, faculty members, guest speakers, Devi Chitralekha ma'am, and my dear students. It has been almost
a month since Mr. Shiv is trying to coordinate this program. In between, we had some problems related to COVID pandemic, and almost every university, every college had to even shut down their online programs, their online seminars, their online classes, webinars. And it was a correct decision because all of us were going through a very bad state overall. In the past 2 months, all of us must have learned several lessons. And of course, it's my duty to pay homage to all those who have lost their lives, our near and dear ones. But as it is, and as it has been over the years, life moves on. And similarly, as we see the cases are coming down and our online activities, online process of knowledge transformation, teaching and learning has again started. Of course, it has been long since the time we have seen our students in physical mode, and maybe it will also take another 6 to 8 months before all of us get vaccinated and we get back to college seeing you all. Today's topic is essentially very important. I don't know how much I am eligible to speak on this topic because we already have great successful leaders in form of Dr. Ram Kailash ji. Hansraj Hans ji is going to join us as informed by Director Sir. I'm going to just share what I feel or what I've learned over the years in the field of education, in the field of social service, and also over the years what I have learned as an individual. The first and foremost thing before going to leadership, I would like to tell you is that any job, any task, whether you are in your class, whether you have taken up some course, whether you are doing some job, or you have started up an entrepreneurial project, any and every task, my friends, come with a part which is not likable to you, something which you don't like. Very famously said by Amazon boss Jeff Bezos that people across the board that he has interacted with, they are not averse to hard work. उनको hard work से कोई problem नहीं होती. But what they are facing problem is with the situation when it becomes out of control. That situation could be because of the environment in which they are working. That situation could be because of the stress that they are under which they are working. Or maybe for someone like me, if I don't get proper time for myself to reflect upon on what I have done, I may start feeling uncomfortable. इसको सिंपल भाषा में मैं अगर कहूँ तो हर एक व्यक्ति जिसको कोई भी जॉब या जिसको कोई भी एक कार्य करना है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज जरूर आती है जो हमें नहीं पसंद होती. स्टूडेंट्स को एग्जाम नहीं पसंद होते. हमें जब हम जॉब करते हैं तो हमें कभी कभी अपने बॉस की बात पसंद नहीं आती. ऐसा नहीं है कि हम लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, हम सब लोग हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो एक एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होना, वो एक फैक्ट है जो हम कभी कभी उस फैक्ट के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाते. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ऑल ऑफ अस हैव टू एक्सेप्ट इट. जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़ जाती है. एंड दैट इज वेयर आई फील दैट एक्सेप्टिंग द फैक्ट and being honest to oneself is very important. Sometimes we do not accept the fact that we don't like something. We continuously keep on dwelling where we are not able to excel, but at the end of the day we do not want to work in that particular position.
as also, very famously said by one of the leaders, is that gifts should not be mistaken for as your forte to do in life. Okay, we always want, all of us want to enjoy our work, but how many of us do? But people who actually start enjoying their work are the ones who succeed in their life. How we have to take leadership forward. The session is all about that. Friends, let me tell you, the history of this world has been seen through its leaders. The ones who have done excellently, exceptionally, have been remembered. The ones who did not do exceptionally or were not good have been admonished. Future is also going to be seen through its leaders. When I talk about business college, this is a business college, a management college. If we go back in time, especially in our country, we have seen the rise of first generation entrepreneurs like Ambani's, Tata's. Of course, their legacies have followed, but these are all first generation entrepreneurs. Now, their family is trying to take their business to new scales. In the current scenario, we have seen entrepreneurs like Bansals, who are people behind Flipkart, Zomato, and many others, Oyo Rooms. And of course, the future is also going to see the business or the uh, entrepreneurial leaders through these names. These names could be anyone sitting here. These names could be anyone who are going to be the future batch of students of this college as well. What's most important is that we have to take that risk. Usually, we do not take that risk because of several reasons. One of those reasons is that we all are in a position where we don't want to fail. I have a very small example here. अभी पीछे जब 2 महीने पैंडेमिक रहा, we saw so many social entrepreneurs, so many people coming out on road to help each other. They never had this feeling in their mind that they will fail. उसका रीजन क्या था कि they did not have any choice. There was no opportunity for them to think. The only opportunity for them was to help and to try to help people. I keep on saying that sometimes it is not important to develop HR policies. It is not important to develop various kinds of paychecks. It is not important to develop various kinds of policies which are going to help people achieve what they want. It is important to have common goals. So many voluntary organizations where you don't even get paid, you don't even get the money which you want, you don't even get the recognition, but so many people get joined to these organizations. Some of them are religious organizations, some of them are non-religious organizations. All of us must be part of one organization or the other in one form or the other. हम क्यों जुड़ते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन से, हम क्यों जुड़ते हैं किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से? बिकॉज ऑल ऑफ अस फील दैट उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा भी ऑब्जेक्टिव है. कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा सोशल सर्विस का, कोई ऑब्जेक्टिव होगा मेंटल पीस का, कोई ऑब्जेक्टिव होगा जस्ट टू प्रे टू गॉड, कोई ऑब्जेक्टिव होगा टू हेल्प पीपल. So it is important for all my young entrepreneur friends to not only think about themselves while they are developing their plan, but also think about a common objective of the society. Once you think about that common objective of the society, definitely people are going to join with you, come to have their own, as you know, one of our great entrepreneurs, Anand Mahindra, ओनर ऑफ महिंद्रा सेट, अगर आप अपने गोल्स के पीछे लोगों को भगाओगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे और हार जाएंगे. लेकिन अगर अपने गोल्स के साथ आपके उनके भी गोल सेटअप कर दोगे
then they are not going to get tired and they are going to continue with whatever they have. They are going to continue with whatever they are going to have, and then unki jo journey hai will be much more comfortable in the common goal of your own self. Friends, as Dr. Ram Kailash ji has also mentioned about a lot of books that he has written, Dr. Ajay Kumar mentioned about the books which Dr. Ram Kailash ji has written. Even in politics, we see, so it is not about positional power that is leadership. It is about influence. We have seen so many people who have got positional power, but they could not make that influence. One of the biggest example of positional power in our country is the legacy. So many times we see that a chief minister gives the baton to his son. A president of a party gives the baton to his son or his daughter, but they do not translate the energy the way their parents or the way the person who started the party do. And what is the reason behind that? The reason is that they got the position, but they could not get the leadership influence on people, which is important. Of course, we are not here to dwell upon politics as such, but leadership, whenever we speak about leadership, we also have leadership in form of politicians. There are some people who only think about themselves, वो individualistic होते हैं. फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, तो वो सिर्फ एक क्लोज्ड फैमिली की उसमें चलते हैं. Then some people who think about the country, the world. Some people never think about their own country only. They also think about the world. हमारे देश में तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करी ही जाती. तो ये सब चीजों को लेकर अगर हमारे बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल्स एक्शन में रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारे साथ people are going to join hands with us. And then there are certain qualities a business leader should have. Friends, we should never think that we have reached a peak. जिस दिन हमने सोच लिया कि हमने कुछ पा लिया, उस दिन हमारी जो करने की स्थिति है वो कम हो जाती है. We should try to keep constantly learning. Both input and output should improve. If your input improves, definitely your output will improve. Consistency, persistency, these things help us. We have to keep improving ourselves. Today, Government of India, Government of Delhi, so many other governments have come up with various kinds of help in form of grant, incubation, which they are giving to you. You have to start taking up that risk, especially the young minds present here in this seminar. Start with thinking an idea, come up with a plan, discuss it with your people. There may be a set of faculty members in your college who are well versed with the entrepreneurial ideas. Discuss it with them, evaluate these ideas and do them, pursue them. Till the time you are young, you can do them. There is no burden on you. People like us who are already, having a family to support, who are already in their mid-age. Friends, all the best. Whatever time I had, I tried to share whatever I have learned over the years. Thanks a lot. Thank you, Shivji, for calling me. Thank you. Thank you so much, Abhishek sir, for your valuable words. The way you explained about Vasudhaiv Kutumbakam with the entrepreneurship ideas, it is really valuable for our students. Now, I would like to welcome Devi Chitralekha ji, a spiritual leader from her childhood days, a motivational speaker, and an actively occupied with the responsibilities for women empowerment in India. She runs Gau Seva Dham Hospital in Palwal, Haryana, to serve cows free of cost. And she is also associated with World Sankirtan Trust. She has earned huge fan following on her social media platforms for her unique identity. Ma'am, please continue with the session. Namaskar, Radhe Radhe. First of all, I'm extremely thankful
to the Technia Institute and the other one, Bharatiya Nav Yuva Foundation, all the faculty and all the students, teachers, professors, and guests, everyone. So thank you so much for inviting me here. I think I'm the youngest one to speak up something about humanity, success, and everything. Today's topic was given, and the topic was how to become successful and humanity. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, थोड़े टाइम में ही बस थोड़े शब्द कह करके I'll conclude it. Everybody has a different definition of success. एक बिजनेसमैन के लिए सक्सेस कुछ हो सकती है, एक स्पिरिचुअल लीडर के लिए सक्सेस कुछ हो सकती है, एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस का जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो पहली बात यह है कि सक्सेस, सफलता कोई एक वस्तु नहीं है या कोई एक स्टेज नहीं है जहां जब आप पहुंच जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम सक्सेसफुल. मेरी ओपिनियन में, मेरी विचार से सफलता वही है जहां आप अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस कर पाते हैं, जहां आप पहुंच कर के आपको लगता है कि हाँ, आपने कुछ अचीव किया है, आपने सोसाइटी को कुछ अच्छा दिया है, आपने अपने राष्ट्र को, अपने देश को कुछ अच्छा दिया है. तो मुझे लगता है कि वो सफलता की एक सबसे बड़ी पहचान है. सक्सेसफुल होने का सबसे पहले हमें जो असली जो मीनिंग है, असली जो अर्थ है, वो समझना चाहिए. क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके पास बिजनेस अच्छा है, उनके पास बहुत सारी फैन फॉलोइंग्स है, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं, बट इवन देन इन सब के होने के बाद भी वो सुसाइड कर लेते हैं. इट मीन्स कि उनके पास सब कुछ था बट सेटिस्फेक्शन नहीं थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो सक्सेसफुल है, सफल है अपनी लाइफ में, बट एट द एंड हमें पता चलता है कि नहीं, वो अपनी लाइफ में बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे. तो मैं जो आज का जो यूथ है, जो कहीं ना कहीं मैं भी उसी एक जो लाइफ की एक एज है उसी से गुजर रही हूँ, मुझे लगता है कि वो इस बात को समझ पाएगा कि सफलता का मतलब आप किसी चीजों से मत आंकिए, किसी वस्तुओं से मत आंकिए. हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी मेहनत छोड़ दीजिए या आप कोशिश करना छोड़ दीजिए. मेहनत और कोशिश एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ के एंड तक करनी पड़ेगी. खाने के लिए, कमाने के लिए, जीने के लिए, हर चीज के लिए मेहनत जरूरी है, पैसा जरूरी है, काम करना जरूरी है, आवश्यक है, और उतना ही लाइफ में धर्म भी जरूरी है. क्योंकि आई एम अ स्पिरिचुअल ओरेटर, मैं धर्म से जुड़ी हूँ, भगवान से जुड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बात मुझे कहना बहुत जरूरी है आज के यूथ को, कि जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, इट डजंट मीन कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. इट डजंट मीन कि आप अगर आध्यात्मिक हैं तो आप ये सोचे कि अब मैं एक साधु बन गया हूँ. इवन आप अपनी कॉलेज लाइफ में, आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अध्यात्म को जोड़ सकते हैं. और जब अध्यात्म हमारी लाइफ से जुड़ जाता है तो उससे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है, अभी जिस हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी. जहां एक टाइम था जब हम कहते थे कि अरे हम बहुत बोर हो रहे हैं, अरे हमारे पास टाइम ही नहीं है रेस्ट करने का, हमारी डेली लाइफ इतनी हेक्टिक हो चुकी है कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए. और जब हमारे पास टाइम आया तब हम ये कहने लगे कि अरे हम तो घर बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, सब कब ओपन होगा, कब ठीक होगा. तो
सोचने की, समझने की जरूरत यहाँ पर है कि जब आप अध्यात्म को, जब आप स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं, तो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी चीजों को जो देखने का नजरिया है, वो चेंज हो जाता है। मुझे लगता है अध्यात्म बस आपको एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग देता है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाए, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये आपको एक विजन देता है। यही अध्यात्म का एक बहुत बड़ा काम होता है। एक आदमी जो अध्यात्म के बिना लाइफ जीता है, वो शायद ऐसी सिचुएशंस में हार जाएगा, लेकिन जिस आदमी के लाइफ में अध्यात्म होगा, वो इन सब चीजों से बहुत आसानी से फाइट कर सकता है और ओवरकम भी बहुत जल्दी कर लेता है। एंड दूसरी बात जो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता। पहली बात तो यही एक सबसे बड़ा दुख है कि एक ह्यूमन को कहना पड़ता है कि आप मानवता मत भूलिए। कोई एक पशु को कभी कहना नहीं पड़ता कि तुम अपनी पशुता मत भूलो। कुत्ते को नहीं याद दिलाना पड़ता कि तुम एक कुत्ते हो, तुम अपना स्वभाव मत भूलो। बट एक मानव को हर कदम पर याद दिलाना पड़ता है कि तुम एक मानव हो, हैवान मत बनो, मानव बने रहो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें युवाओं को अपने अध्यात्म को अगर वो जोड़ लेगा, तो उसको मानवता का असली जो मतलब है वो समझ आ जाएगा। और मुझे लगता है मानवता का एक सबसे बड़ा एक उदाहरण है दया, काइंडनेस। अगर वो आपके अंदर है तो आप एक अच्छे ह्यूमन बन सकते हैं। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बट टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, दैट्स व्हाई आई हैव टू लीव। एंड शायद बहुत सारे और भी स्पीकर्स हैं, उन सबको भी अपने अपने विचार रखने हैं। सो आई एम सो थैंकफुल कि मुझे आप लोगों ने यहाँ इनवाइट किया और थोड़ा मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला। सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा देवी जी, आपने समय दिया। रिक्वेस्ट हमारी। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम सक्सेस का मतलब यही नहीं है कि हम कुछ पैसे जीत लें, बल्कि ये है कि किस तरह से मेंटल पीस और सुकून पा लेते हैं, वही सबसे बड़ी सफलता है। थैंक यू सो मच मैम। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस अनुराधा भारद्वाज जी। She is a well-known women empowerment coach and also running self-help group for the same. Apart from that, she is a writer and Sanyojika at Swadeshi Jagran Manch, RK Puram Vibhag, Delhi. Anuradha ma'am, please share your viewpoint on the subject. जी namaskar to one and all Namaskar, energetic souls present here. First of all, I would like to thank organizer of the program, then our faculty members, then our eminent speakers, and our valuable, most loving children. Hare Krishna to all of you. Hare Krishna. So, बहुत अच्छा हमारा जो आज का टॉपिक है, एंटरप्रेन्योर्स, लीडर। अगर हम कहें कि कौन है लीडर, एक्चुअल में वास्तव में लीडर कौन है, व्हाट इज द लीडरशिप? क्या लीडरशिप क्या है? फॉर्मिंग द पीपल? इज इट फॉर्मिंग द पीपल? नो, आई थिंक द लीडरशिप इज ऑल अबाउट इवॉल्विंग द पीपल. Leadership is all about evolving the people. There are two things which are attached. First, emotions, and second, logic. People and business. We all know business is run by the people, and people's means emotion. Peoples are emotional. So we have to link these two factors together to run a successful business. People, emotions, convert them into logical, because business, whenever we speak about the business, it is logical. So what we have to do, we have to link the people with business. For this, we have to link the emotion of the people with the business. It means what? It means we have to create the mindset. Don't play with numbers. We have to create the positive mindset of our people to become the successful entrepreneurs. Isn't it? Let's discuss the two stories
we have to create for all the young aspirants, for all the students who want to do something different in their life. They have to create compelling, exciting story for themselves. Again, I'm emphasizing on these words: compelling, exciting stories. You have to create. Friends, if you want to create a history for yourself, you have to create compelling, exciting stories. And what is that? Let's discuss with two examples. First of all, have you heard the founder of Panasonic Limited? Panasonic, Mitsubi Honshuke. He was the founder of the Panasonic. And what he did to become a successful entrepreneur, he created a cause. Karan, he created a purpose. He created a compelling story. What was that compelling story? एक बार उसके earlier he was a very poor man, the founder of Panasonic India, Panasonic Limited. He was a poor man. How he created a compelling story? Just listen this thing. Earlier he was अनुराधा बहन आपका म्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अनुराधा बहन अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, now am I audible? यस यस। ओके, तो हम आपको बता रहे थे हर स्टूडेंट को और एवरीवन जो कि लाइफ में सक्सेसफुल होना चाह रहा है, he has to create a cause for this, he has to create a compelling, exciting story for this. क्या है ये compelling, exciting story? Let's discuss the two famous example. First of all, founder of Panasonic, Mitsubi Honshuke was the founder of Panasonic, and उन्होंने किस तरह क्रिएट किया कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी, हम आपको बताते हैं। वो बहुत गरीब थे, उन्होंने देखा उनकी वाइफ और उनके ब्रदर इन लॉ रिक्शा में रॉ मटेरियल ले जा रहे थे, तो वो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति अचानक अंदर गया घर में किसी के और बिना परमिशन के उसने घर के अंदर पानी पिया और वो बाहर आ गया। तो ही डिस्कस्ड कि ऐसा कैसे है कि इसको किसी ने नहीं रोका, कुछ भी नहीं हुआ और वो वापस आ गया। तो क्या कंक्लूड हुआ, क्योंकि पानी सस्ता है, दैट्स व्हाई नो वन हैज इंटरफेयर्ड, नो वन ऑब्जेक्टेड हिम, बिकॉज पानी सस्ता है। उनको ये आइडिया, ये थॉट ऑल ऑफ सडन क्लिक किया, पानी सस्ता है, नो वन ऑब्जेक्टेड। अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को इतना सस्ता बना दूं, Have you got it? अगर मैं पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाता है, पहले टीवी आते थे उसके, अगर मैं उसको इतना सस्ता बना दूं, पानी से भी सस्ता, क्या किया उन्होंने? इस कॉस्ट को लेकर अपनी सेलिएबिलिटी बढ़ाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज की, एंड ही डिड व्हाटएवर ही वांटेड टू अचीव, उन्होंने अचीव किया। एंड पैनासोनिक, यू नो, इतनी बड़ी कंपनी रही। तो यू हैव टू क्रिएट compelling, exciting story. Let's take another example, Hitler. हिटलर को हम सब जानते हैं, आज जो जर्मन है, जर्मन में नाजी गवर्नमेंट थी। 1933 में हिटलर वहां के रूलर थे। अगेन, अगर इफ देयर इज अ पॉजिटिव स्टोरी, पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव स्टोरी, नेगेटिव इंपैक्ट। हिटलर ने जर्मन को, उसका देखिए क्या कॉज था, क्या पर्पस था, व्हाट वाज द स्टोरी, ध्यान से सुनिए। द होल नेशन ऑफ जर्मन स्टूड बिहाइंड द हिटलर। कैसे? सुनिए, उन्होंने क्या कहा हिटलर ने? वी आर द आर्यन रेस, वी आर प्योर, आवर ब्लड इज प्योर। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग दीज थ्री वर्ड्स बाय हिटलर। आवर रेस इज आर्यन रेस, वी आर प्योर, आवर ब्लड इज प्योर। और आप विश्वास करिए, पूरा जर्मन हिटलर के साथ खड़ा हो गया, पूरा जर्मन हिटलर के साथ खड़ा था, बिकॉज द हिटलर हैज क्रिएटेड अ स्टोरी, हिटलर हैज कॉज, और वो जो कॉज और पर्पस उन्होंने सबको दिया,
the whole Germany stood behind the Hitler. He created compelling, exciting story, positive story. What was the negative impact? Jews को मरवा दिया, जला दिया. There was a negative story and there was a negative impact. It depends upon you. It depends upon your karma. What kind of stories you want for yourself in this course of a life? What kind of story you want to choose for yourself, friends? It depends entirely upon you. So, same way Mahatma Gandhi, same way Mother Teresa, same way अफ्रीका के जो थे नेल्सन मंडेला. Again, they had a cause, they followed it, they created a history by that cause. So what is the main thing out of this? What is the main? Conviction leads to communication. Conviction create the mind, strong belief. You have to convince, you have to convince the people, you have to strike their emotions, change, touch the emotion of the people, change them into devotion, and then you will get the promotion. All these things are interrelated, friends. Communication doesn't lead to conviction. You have to convince people. You should have that power. Then only you can create the compelling story. सरहद पर एक सैनिक मरता है तो इसलिए नहीं कि उसको तनख्वाह मिल रही है, because of this mindset कि he is ready to sacrifice everything for the sake of the country. So if you want to become successful leader in near future, you have to change the mindset of the people. You have to create the mind. And for this, what you need to do, how you can do this, how you can achieve this as an individual. First, you have to accept that you are the powerhouse of energy. Every soul in this universe is the powerhouse of energy. We have the immense power given by God. Every thought we create manifest into reality. हर विचार जो हम निर्मित करते हैं वो सच्चाई में परिवर्तित होता है. Every thought you create rotates around the universe, rotates around the people. यानी आप जैसा बनना चाहते हैं आप वैसे बन सकते हैं. संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण है. एक संकल्प आपको संवार सकता है और एक ही विकल्प आपको बिखेर सकता है. संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण है. Everyone has to accept this. The moment you accept this, we are the powerhouse of the energy. We have to relate it with this energy by doing yoga, ध्यान, अष्टांग योग, प्राणायाम. यानी क्या खेल है? बॉडी, माइंड, स्पिरिट. अभी जो ये कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी आपको क्रिएट करना है ना, उसके लिए ये जो मानव चोला प्रभु ने दिया है इसको कसना है. इसको जिस तरह सोने को जोहरी चमकाता है उस तरह ही इसको चमकाना है. बहुत अनमोल चोला प्रभु ने सिला है ईश्वर ने. ये बिना तपे कुछ अचीव नहीं होगा. बिना हार्ड वर्क किए, बिना फेलियर्स को एक्सेप्ट किए, you can't create a successful story. The whole life is a learning experience for you, friends. Everyone, for all of us, even for us, that every step of life gives us immense kind of a knowledge. Immense kind. But we need to be flexible. अहंकार में हम इतने ना हो कि हम कहें हम ही ज्ञान का पुंज हैं, वही ज्ञान का अंत है जहां जिसने सोच लिया जी वही ज्ञानी हो गया. नहीं. The whole life is like a journey of knowledge. Whole life is like. आपको करना क्या है? अगर हम कहें संकल्प से ही सृष्टि निर्माण है तो you have to create a positive thought for yourself. Every morning
हम जैसा देखेंगे, जैसा पढ़ेंगे, जैसा सुनेंगे, हम वैसे ही हो जाएंगे। उसका हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे कर्मा पे असर पड़ेगा और वो हमारा संस्कार बन जाएगा। अगर हम अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो जो भी हम करेंगे वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए फ्रेंड्स, you need to do yoga, pranayam. For body you need yoga. For mind you need dhyan. For spirit you need spiritual kind of a knowledge. Go through our culture, link yourself with our culture. It's a immense it can give you. You can't think हमारा मन क्या है। हमारा जो मन है, जिस तरह समुद्र में लहरें उठती हैं, लहरें उठी, लहरें गिरी, फिर लहरें उठी, फिर लहरें गिरी, सेम हमारे मन में भी विचार लहरों के समान उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं विचार, फिर गिरते हैं। We can't go beyond these words. Can we go? Do you think can we go beyond the words? और अगर शुद्ध हिंदी में कहें, शब्दातीत हो सकते हैं? नहीं। All the time our mind is occupied by the thoughts, negative thoughts, positive thoughts, past thoughts. We can't live in the present because we are the mind. We have become the mind. We are the mind, and the mind is leading us towards the death. We are not enjoying our life. We are not enjoying the har pal, every moment of our life. हम नहीं, हम कर रहे हैं enjoy, नहीं कर रहे। क्यों? Because we are not linked with ourselves. स्वयं से नहीं जुड़े। जिस दिन स्वयं से जुड़ गए, उस दिन हर पल में आनंद होगा और आप अपनी स्टोरी खुद क्रिएट करोगे। You will set the example before others. एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनाती हूँ, प्लीज मुझे बता दीजिएगा अगर सेशन मेरा टाइम अप हो गया। प्लीज लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा, खुशी होगी। मार्कंडेय पुराण में बहुत सुंदर स्टोरी आपको सुनाती हूँ, सत्य कथा। मार्कंडेय पुराण में यथा मदालसा की कथा है। एक यथा मदालसा, महाराज ऋतुध्वज की पत्नी थी यथा मदालसा। यथा मदालसा ब्रह्म ज्ञानी माता थी। इसके 4 पुत्र हुए, 4 पुत्र यथा मदालसा के। यथा मदालसा ने अपने बच्चों को ब्रह्मलोरी सुनाती थी। सुनिए वो ब्रह्मलोरी क्या है। 2 शब्द कहेंगे, ज्यादा नहीं, संस्कृत में है। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोसि, संसार माया परिवर्जितोसि। पुत्रों को क्या कह रही है यथा मदालसा? हे मेरे पुत्रों, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही निरंजन है। ये संसार एक मोह माया है पुत्रों। ये जो तुम्हें नाम भी मिला है वो भी तुम्हारा नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं, तुम तो स्वयं एक सिद्ध आत्मा हो। इस तरह ब्रह्मलोरी का ज्ञान देके यथा मदालसा जैसी माता ने 3 पुत्रों को सन्यासी बना दिया। राजा ऋतुध्वज उनके पैरों में पड़ गए, देवी एक पुत्र को तो राजपाट के लिए छोड़ दो। चारों पुत्र सन्यासी बन गए तो राजपाट कौन संभालेगा? तब यथा मदालसा ने अपने चौथे बेटे को अलाक्रा नाम दिया, बाकी सबको विक्रम बाहु, बहुत सुंदर नाम दिए। चौथे बच्चे को अलाक्रा नाम दिया। राजा ऋतुध्वज ने कहा इसका नाम अलाक्रा क्यों रखा? माता क्या कहती है यथा मदालसा? अलाक्रा मतलब मदमस्त व्यक्ति, जो राजपाट और भोग विलास और इस तरह सांसारिक सुखों में निर्लिप्त रहेगा, वो अलाक्रा, यानी जस्ट लाइक मैड डॉग। और बाकी 3 पुत्रों को इतनी क्षमता है हमारी भारतीय संस्कृति की माताओं में, हम जो चाहे हम वो बन सकते हैं। संकल्प से ही सृष्टि निर्माण है। आपको संकल्प लेना है, स्वयं से जुड़ना है, योग ध्यान प्राणायाम करना है। मेरे शब्दों पे नहीं जाना, स्वयं अनुभव करना है और स्वयं को इस बुलंदी तक ले जाना है कि हम
बने सबके सामने, हमको आदर्श न देने पड़े, हम स्वयं ऐसा कर जाएं इस सांसों के रहते रहते कि हम स्वयं अपने बच्चों और समाज के लिए आदर्श बन जाएं। यही हम लोगों का प्रण होना चाहिए। और अंत में यही कहूंगी, मेरे बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी फ्रेंड्स हैं, लाइफ में अगर कुछ करना भी है तो अपने राष्ट्र को कभी मत भूलना, अपने राष्ट्र प्रेम को कभी मत भूलना। कई ऋणों में से एक ऋण अपने राष्ट्र के लिए भी होता है। तो इसलिए हे मनुष्य, तेरे अंदर इतनी क्षमता है कि यही कहेंगे, छोड़कर धरा को तोड़ आसमां की काली मां, छोड़कर धरा को तोड़ आसमां की काली मां, जगा दे सुप्रभात को, जगा दे अपनी लाली मां, जगा दे सुप्रभात को, जगा दे अपनी लाली मां, तेरी शुभ्र कीर्ति संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। So wish you all the best for all the students and all the friends. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you so much, ma'am, for your valuable words. Now I would like to invite Mr. Dinesh ji from North Delhi Vibhag, Sanchalak RSS, currently providing his knowledgeable services to Shri Ram Shikha Mandir, a school affiliated to CBSE. Mr. Dinesh is an educationist, thinker, and a well-known social worker by nature. Mr. Dinesh, please enlighten us. बहुत बहुत धन्यवाद। और टेक्निया के मैनेजमेंट, सारी फैकल्टी, सभी स्टूडेंट्स और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुद्धिजीवीगण, आज का जो दुनिया है वो उसमें जो ज्ञान है वो सारा सबके लिए उपलब्ध है, बड़ा आसानी से उपलब्ध है। गूगल पर जाइए, कहीं जाइए, बहुत आसानी से मिल जाता है। इसलिए मैं बहुत ज्ञान की बात ना करने वाला हूँ, ना आपको ये कहने वाला हूँ कि आपको ये करना है, ये वो करना है। बहुत ही व्यवहारिक होकर हमें अपनी दुनिया को देखना चाहिए। और व्यवहारिकता ये है कि हम लंबे समय से दूसरों को देखकर और उन्होंने क्या किया उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते रहे, और धीरे धीरे हमारी आदत में कॉपी पेस्ट आ गया, हम पिछलग्गू हो गए। और उसका कारण यही रहा क्योंकि हमने अपने आप को नहीं पहचाना। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को पहचाने, और उसको पहचानने के लिए कहीं दूर से किसी की कोट लाने की आवश्यकता नहीं है, किसी ने क्या कहा ये जानने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसके लिए हम अगर ऑब्जर्वेंट है, उसको हम ठीक से उसको ध्यान से देखते हैं क्या क्या घट रहा है, तो सब कुछ आपको यही मिलने वाला है। इस दुनिया में आप जहां भी जाएंगे वहीं मनुष्य रहता है, समुदाय रहता है, वो अपनी क्रियाएं करता है। और जब जो क्रियाएं जहां सब जगह करता है तो यहाँ हमारे आसपास भी वही क्रियाएं होती हैं। तो अगर उन क्रियाओं को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उन्हीं में से हमारे नवाचार भी निकलते हैं, उन्हीं में से हमारे नए व्यापार निकलते हैं, उन्हीं में से हमारे नए आइडियाज निकलते हैं। तो जो ऑब्जर्वेंट होने की आवश्यकता है, अगर ये हमने किया तो फिर बहुत सारे काम अपने आप हो जाने वाले होते हैं। दूसरा, स्वयं पर विश्वास करना। अगर आप गूगल मैप पे जाएं और गूगल मैप को पूरा खोल ले, तो पूरी दुनिया देखें और फिर उसमें आप अपने आप को ढूंढना शुरू करें या अपने मकान को ढूंढना शुरू करें, तो आपको समझ में आएगा कि इतनी बड़ी दुनिया में मैं कहाँ हूँ। ज्वाइन में लेकिन ये भी निश्चित है कि इस बड़ी दुनिया में आप कहीं दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उसके अंग है, उसके महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आपके बिना वो दुनिया पूरी नहीं होती। आप जैसे छोटे छोटे बिंदु बनकर, मुझसे जैसे छोटे छोटे बिंदु बनकर ही ये दुनिया बनी है। इसलिए आई एम द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसलिए मेरा जो काम है वो काम केवल मेरे अपने लिए नहीं है। मैडम, ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरा जो नेचर है, उस नेचर के इंटीग्रल पार्ट होने के कारण से मेरा काम सबके साथ जुड़कर करने वाला है। और यही प्रॉब्लम हमारे साथ हुई कि हमने केवल अपने आप को तो देख लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि मेरा
वजूद अकेले का नहीं है, भाई साहब मेरा वजूद मेंटली सबसे मिलकर है। ये एक बार म्यूट करिए, मुझे लगता है हाँ कुछ रश्मि जी आप disturbance अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आप रश्मि जी माइक म्यूट कर दीजिए, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ भाई साहब यू कैन कंटिन्यू। जी धन्यवाद। तो ये जो मेरा वजूद है वो अकेले का नहीं है, मैं चाहे कितना भी बड़ा हूँ लेकिन इस प्रकृति का एक अंग हूँ, और इस प्रकृति में मेरे कुछ करने से या प्रकृति में कहीं भी कुछ भी होने से सब पर उसका कहीं ना कहीं कम या ज्यादा असर आता है। अभी मेरे से पूर्व दो वक्ताओं ने धर्म और अध्यात्म की बात की, तो धर्म और अध्यात्म तो मानवता से अलग है ही नहीं। जब हमने मानवता बोल दिया तो धर्म और अध्यात्म तो उसी का हिस्सा है उसका। हमने एक मानव की के नाते से दूसरे मानव की चिंता की, हमने एक मानव होने के नाते से प्रकृति की चिंता की, तो धर्म और अध्यात्म तो सभी उसी के पार्ट है उसके। तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी शक्ति को पहचानना, अपने आप को जानना और मेरे आसपास में क्या हो रहा है उसको जानना, अगर ये दो चीजों को जान लेंगे तो सब काम आसान हो जाने वाले, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन हमेशा एक बात अगर हम ध्यान से रखें कि हम कुछ भी करें लेकिन हम अंततः इस प्रकृति के दास हैं, हम इस प्रकृति के सेवक हैं, क्योंकि प्रकृति से हम ऊपर नहीं है। और इस कोरोना ने हमें सिखा भी दिया है, बता भी दिया है कि आप प्रकृति के आगे कुछ नहीं है। प्रकृति का एक छोटा सा भी कोई बिना जो आकार का है, बिना जो कोई रूप रंग का है, कोई ऐसा भी छोटा सा वायरस आपको सबको हिला सकता है। तो इस प्रकृति के आगे कुछ नहीं है। तो मानव होने के नाते से मानवता की सेवा और मानवता के अंदर जो है प्रकृति भी आती है, क्योंकि प्रकृति अगर बैलेंस में नहीं रही तो फिर मानवता भी कहीं बचने वाली नहीं। तो आज माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्पष्ट और ज्यादा सीधे बोलना ही मैं विश्वास रखता हूँ। जिन बहुत सारे लोगों के हम वाक्यों को कोट करते हैं, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवियों के होते हुए भी आज ये दुनिया कहाँ पहुंच गई है कि जहां ना वायु शुद्ध है, ना जल शुद्ध है, ना पृथ्वी शुद्ध है, और ना व्यक्ति का मन शुद्ध रह गया। और उसके कारण से ऐसी ऐसी समस्याएं, आज डिप्रेशन, अब भारत जैसे देश में डिप्रेशन, लेकिन आज हम डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। एक युवा जो इतना हर समय चंचल होता है, उत्तेजित होता है, साहसी होता है, उसके अंदर डिप्रेशन आ रखा है। तो हम जा कहाँ रहे हैं, सोचकर देखिए, हमने दुनिया को कहाँ ले आए। तो इन सब से अलग अपने आप को करिए और अपनी दुनिया को ध्यान से देखिए, अपने आस पड़ोस को ध्यान से देखिए, अपने आसपास में जो घटनाएं घटती है उनको ध्यान से देखिए और उनके आधार पर अपना स्वयं का निर्णय कीजिए। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर ऊपर वाले ने फिट किया है वो सॉफ्टवेयर दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप यूनिक है। और जब कोई यूनिक होता है तो उसके यूनिकता में, यूनिकनेस में कोई दूसरी चीज पेस्ट नहीं की जा सकती। जो आप कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस जैसा बनूंगा। कई बार हम बड़े बड़े महापुरुषों को पढ़ते हैं, विद्वानों को पढ़ते हैं, साइंटिस्ट को पढ़ते हैं, और सोचते हैं इस जैसा बनूंगा, उस जैसा बनूंगा। भैया किसी जैसा मत बनिए, अपने जैसा बनिए। जो आपके अंदर से जो आवाज आती है उस जैसा बनिए। केवल एक ध्यान रखिए कि आपके किसी भी एक्शन से दूसरे लोगों का बुरा ना हो, कोई उसके कारण से आहत ना हो, उसके कारण से उसको कोई उसका नुकसान ना हो। इतना ध्यान रखते हुए आपकी अपनी जो आत्मा जो कहती है, आपका अपने से जो विचार बनता है उसको खूब खुले मन से, खुले हृदय से उसको कीजिए। आप निश्चित रूप से, हो सकता है पैसा थोड़ा कम कमा पाएंगे, लेकिन जीवन में जो जीवन की सफलता का मूल अर्थ है वो जरूर पालेंगे। डिप्रेशन नहीं आएगा, छोटी छोटी बातों पर किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, और वो जो खुशी है आपके जो चेहरे पर आएगी उसको कोई छीन नहीं पाएगा। तो मुझे तो केवल इतना ही आप लोगों से निवेदन करना, आप सब युवा हैं और
युवा के पास बहुत ताकत होती है, वो क्षमताएं बहुत होती हैं, तो उस अपनी क्षमताओं को पहचानिए और उस क्षमता का सही से उपयोग हो। इसलिए अपनी क्षमता का अपने द्वारा उपयोग कीजिए, अपनी पहचान बनाइए, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कीजिए। किसी से दूसरे से ना कुछ भी उसका कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी जैसा बनने की आवश्यकता है। स्वयं जैसा बनिए। आप लोगों ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारा युवा पुनः अपना अपना विचार और अपना अपना उद्देश्य लेकर खड़ा होगा तो निश्चित रूप से हम भारत को आगे बढ़ा पाएंगे, और भारत आगे बढ़ेगा तो विश्व बढ़ेगा, ये निश्चित है। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। आज आपने समय निकाला, मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता के एक फोन से ही आपने सहमति दे दी, तो ये भी एक निश्चित है कि हम राष्ट्र की ध्येय आराधना की तरफ बढ़ रहे हैं। बहन जी ने भी बड़ी अच्छी बात रखी कि योगा मेडिटेशन से ही हमें उस चीज का चिंतन करके ही हम एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। तो भाई साहब ने भी बड़ा संक्षिप्त में ये कहा कंक्लूडिंग रिमार्क में कि अपने जैसा बनिए। तो पहले हम स्वयं चिंतन करें, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरफ जाना चाह रहे हैं, फिर हम जब भी दूसरे को अपना उदाहरण बता पाएंगे। तो एक अच्छी बातों में भाई साहब ने पूरा एक संक्षिप्त रखा। तो अनुराधा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Dinesh sir, for your valuable information and knowledge. Now I would like to invite our chairperson, sir, Dr. Ram Kailash Gupta. Dr. Ram Kailash Gupta is a prominent educationist. It is due to his untiring efforts that he has started a number of exemplary institutions in the field of professional and technical education. Dr. Ram Kailash Gupta realized that there were very few seats available in Delhi for students desiring advanced studies in the field of management, information technology, and journalism. Due to this, a number of talented students were deprived to technical education in Delhi NCR region and were forced to move to other states for admission in various professional courses. To save this national talent, he studied number of options by which the professional and technical education can be made available to these aspiring talented students. Dr. Ram Kailash Gupta pursued this course with great dedication, commitment, and passion with the highest authorities. Sir, please proceed with the session and enlighten us with your knowledgeable experience. Dr. Rashmi Gujrati, Dr. Ajay Rathore ji, and other prominent speakers of the day. मैं सभी आज के इस पार्टिसिपेंट्स को बहुत लंबी बात ना करके कुछ छोटे छोटे टिप्स में टू दी पॉइंट चीजें बताना चाहूँगा। और अगर हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो चाहें तो अपने पास पेपर पेंसिल लेकर के नोट करें। मैंने एक पुस्तक लिखी है, जैसे डॉक्टर अजय राठौर जी ने बताया, उसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं लगभग, और भी बहुत सारी उसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं 2, 4, 5, 7 पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो जो बच्चा +2 करके ग्रेजुएशन करता है या मास्टर्स डिग्री करता है, उसको अपना कैरियर हायर एजुकेशन में स्टार्ट करने से पहले ये डिफाइन करना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे बड़े जो स्पीकर्स ने दिए, बहुत सारी उन्होंने चीजें बताई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेसिक चीज ये कि पहले हमें एक एंटरप्रेन्योर को ये मालूम होना चाहिए कि उसको जाना कहाँ है, उसको करना क्या है। क्या मुझे हायर स्टडीज, रिसर्च या एंटरप्रेन्योर, वो डिसाइड होने के बाद ही वो एंटरप्रेन्योर की बात करेगा। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी क्या मुझे कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई स्टार्टअप आईटी के सेक्टर में काम करना है, कोई मैनेजमेंट फील्ड में मेरी रुचि है, मेरी संगीत के क्षेत्र में रुचि है, मेरी स्पोर्ट्स में रुचि है,
मेरी विज्ञान में रुचि है, मेरी रुचि कहाँ पर है और मैं कहाँ समझता हूँ कि मेरे को मेरी नॉलेज किस क्षेत्र में है और मैं जिसको अपनी रुचि को एनहांस करना चाहता हूँ। जब तक हम एक रास्ता अपने मन में सोचें, अपने रुचि के साथ साथ अपॉर्चुनिटी, कई बार रुचि मेरी होती है मैं हिंदुस्तान का एक अच्छा बेस्ट प्लेयर बनूं, लेकिन मुझे प्लेयर बनने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है किसी आईटी इंडस्ट्री में काम करने की। तो जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है उस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल करें, वहां से शुरुआत करें पॉजिटिव सेंस के साथ। जीवन में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हम काम इसलिए कर लेते हैं कि मेरा दोस्त वहां पर कर रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड वहां पे काम कर रहा है, मेरे रिश्तेदार मेरे वहां पे काम कर रहा है या वो कर रहा है, वो मैं भी ये करके देखता हूँ। तो अपने आप को आप अपना आकलन कीजिए, अपने आप को तोलिए, अपने आप को समझिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। उसके बाद हम उस जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है उस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट पॉइंट, कर्म योगी। एक व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट, जो व्यक्ति, मेरा ऑफिस का टाइम तो 10 बजे शुरू होता है, आज तो सेकंड सैटरडे ऑफ है, आज तो संडे है, छुट्टी है, आज तो गेस्टेड हॉलीडे है। सुबह सुबह थोड़ी कोई काम किया जाता है, शाम को थोड़ी किया जाता है। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप जीवन के सारे सुख पा करके कोई चीज आपके सामने आके थाली में परोस के लेके आएगा, कहेगा ये लो भाई, ये 56 भोग आपके सामने रखा है, आप इसको खाइए, ऐसा संभव नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसको अपॉर्चुनिटी छीननी पड़ती है और छीनने के लिए समय देना पड़ता है और किसी के नॉलेज को गेन करना पड़ता है, और ये देने के लिए और नॉलेज को गेन करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ चीजों को आपको हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। आपको बहुत जरूरी कहीं पार्टी में जाना है और आपको उसी रोज कोई आपकी अपॉइंटमेंट है, तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे लिए पार्टी जरूरी है, मेरी अपॉइंटमेंट जरूरी है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को गेन करें, कर्म योगी बने, समय का सदुपयोग करें। कर्म योगी इंसान वो होता है जो कर्म को प्रधानता देता है आपके लिए। क्योंकि आपने जब खेलने का समय था बचपन में, आपने बहुत खेला, जब आपको स्कूल में पढ़ाई करने का टाइम था आपने स्कूल की पढ़ाई की। आज अगर आपको एक उद्योगपति, एक एंटरप्रेन्योर, एक डेवलपर, एक एंटरप्रेन्योर जिसकी बात हम कर रहे हैं, बनना है, तो आपकी प्राथमिकता आपका ये काम होना चाहिए। और काम करने के लिए, काम को अचीव करने के लिए कर्म योगी होना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, आपका 1 मिनट का भी टाइम आप वेस्ट ना करें। आपका हर वक्त, आप चाहे किसी सोशल पार्टी में गए हैं, चाहे आप फैमिली में बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी यार दोस्तों के साथ बैठे हैं, वहीं पर आपका दिमाग आपके अपने एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ होना चाहिए कि इस पार्टी में क्या ऐसा काम है जिसको किया जा सकता है और जिसको मैं कर सकता हूं और जो करने से मैं उस काम को अचीव कर सकता हूं। टाइम मैनेजमेंट, आपको मान लीजिए दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, आपको 4 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचना है, आप बाई कार जा रहे हैं तो आप कार की आपकी रफ्तार क्या होगी, आपको 6 घंटे में पहुंचना है तो आपकी कार की स्पीड क्या होगी, आपको रास्ते में रेस्ट कितना टाइम करना है। आपको इसी तरीके से एक काम करने के लिए आपका टाइम शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। जो लोग टाइम मैनेज नहीं करते, टाइम से चीजों को शुरू नहीं करते, टाइम से चीजों को खत्म नहीं करते, टाइम बाउंड नहीं होते, अपने आप से टाइम को बांध के नहीं रखते, टाइम उनको पीछे छोड़ देता है और वो लोग पीछे रह जाते हैं, जीवन में कभी भी कोई चीज अचीव नहीं कर पाते। मैं खास तौर पे हमारे एंटरप्रेन्योर्स स्टूडेंट्स को बात कहना चाहता हूँ, जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। यूरोपियन कंट्रीज में, आज तो हिंदुस्तान में भी ये स्थिति आ गई है
यूरोपियन कंट्रीज में जब एक हाउसकीपिंग का आदमी अपने जॉब पे जाता है तो वो अपनी कार में बैठ के आता है, टाई लगा के सूट पहन के आता है, और वो अपने काम पे जाके सूट को चेंज करके अपने जो हाउसकीपिंग के गारमेंट्स को, कपड़ों को पहनता है और वहाँ हाउसकीपिंग का, सफाई का काम करता है। चाहे वो हॉस्पिटल में सफाई कर रहा है, चाहे वो आपका किसी होटल में सफाई कर रहा है, या और कोई काम, सड़क पे सफाई कर रहा है, वो आदमी वो अपना काम, ड्यूटी पूरी करेगा, फिर कपड़े अपने चेंज करेगा, वही टाई लगा के सूट पहन करके अपनी कार में बैठ के वापस जाएगा और जीवन में बहुत खुश रहता है। कि कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता, रुचिकर होना चाहिए, हमारी उस काम में रुचि होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, काम में ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए। आज हम किसी छोटे से काम को छोटे से रूप में स्टार्ट करते हैं, कल को उसी के बहुत बड़े रूप होते हैं। तोल मोल ना करें। आज आपके पास कोई भी कंपनी आपके कॉलेज से, आपकी किसी भी कोई इंटरव्यू के लिए आपके पास आए, तोल मोल ना करें मीन्स आप किसी जॉब के लिए मान लो इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको जॉब मिल रही है 6 लाख रुपए की, आप करें मैं, मेरी वैल्यू 6 लाख रुपए थोड़ी है, या मैं 6 लाख रुपए के मैं काम करूं, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे तो कम से कम 20 लाख रुपीज का पैकेज चाहिए, 15 लाख का पैकेज चाहिए, या ये काम करने से मुझे मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। बात आप उसको पैसे से मत तोलिए, किसी काम को प्रोग्रेसिव है या नहीं, पैसा उसमें आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, ग्रोथ आज नहीं होगी तो कल होगी। बस आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए, कर्म योगी आप होने चाहिए, आपकी लगातार उसके अंदर प्रयास होना चाहिए। दुनिया का सक्सेसफुल व्यक्ति, सक्सेसफुल की अभी डेफिनेशन मैडम ने आपको बताई थी, कोई सक्सेस नहीं है, या सब कुछ सक्सेस है। जहां आदमी ग्रोथ होनी चाहिए, वही सक्सेस की एक निशानी है। अभी एक स्पीकर ने बात आई कि भाई हम लोग क्या काम करें। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर में कभी कोई काम नहीं किया, तो कोविड के टाइम में उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढा। हमारे कॉलेज के स्टाफ ने 20 साल में जो काम नहीं हुआ वो इस कोविड के टाइम में काम करके दिखाया। हमारे जूनियर स्टाफ से लेकर सीनियर प्रोफेसर, डायरेक्टर्स, सभी लेवल के लोगों ने इतना काम किया कि शायद अगर ये टाइम ना होता तो शायद ये काम ना हो पाता। तो हर स्थिति में आप क्या पॉजिटिव ढूंढते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, ऐसे छोटे बहुत सारे टिप्स हैं। स्वार्थी ना बनिए। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी लॉटरी निकाल दे, प्रभु मेरे को मकान दे दे, प्रभु मेरे को मर्सिडीज गाड़ी दे दे। आपने अपने स्वार्थ की बात करी। आप अभी एक स्पीकर ने कहा, क्यों नहीं हम पूरे एंटरप्रेन्योर की बात करते, जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं सभी को प्रभु जल्दी से उनकी जॉब्स दे दो। पूरे भारतवर्ष की बात क्यों नहीं करते, फिर पूरे दुनिया की बात क्यों नहीं करते, फिर पूरी मानव जाति की बात क्यों नहीं करते, फिर पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी जीव हैं, हम सब की बात क्यों नहीं करते। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे, इस लोक में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, सबको खुश रखना, सब खुश रहें, तो हम भी तो उसी में से एक हैं। इसी प्रकार से बहुत लंबी वार्ता, बहुत कुछ डिस्कशन किया जा सकता है। मैं डॉक्टर गुजराती मैम को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये इतना बड़ा चैलेंज हमारे देश के जो नवयुवक हैं उनको एंटरप्रेन्योर बनाने का अपने ऊपर लिया हुआ है। और मुझे भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार से उनकी काम करने की शैली है, जिस प्रकार से वो लोगों को जोड़ के चलती हैं, जिस प्रकार से आप सबको वो मोटिवेट करके चलती हैं, वो दिन दूर नहीं है कि आप सब एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे। उनकी गाइडेंस के अंदर वो आपको अपॉर्चुनिटीज दिलवाएंगी, प्लेटफॉर्म्स दिलवाएंगी इस प्रकार के कि आप वो सब कुछ अचीव कर पाए। मैं बधाई देता हूं उनको और पूरी टीम को, ऑर्गेनाइजिंग टीम को, जिन्होंने ये सारा वेबिनार ऑर्गेनाइज की है। और आशा करता हूं कि समय समय पे बहुत जल्दी इस प्रकार की जर्नल टॉक्स, वेबिनार्स, डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशंस, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए, बच्चे अपने क्वेश्चंस लेके आए, और 1-to-1 ओपन डिस्कशंस, बच्चों के मन में क्या है,
सामने वाले बच्चे क्या चाहते हैं, उनको क्या लगता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, हम वन साइडेड होकर के बात को ना सुने। इस प्रकार के कार्यक्रम समय समय पे वो ऑर्गेनाइज करेंगी। मुझे भी उन्होंने आज इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत आप सबका आभार और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Chairman sir. This is possible because of Bharatiya Navayug Foundation's Mr. Shiv Shankar ji is there with us, and Sanjeev Bhardwaj, and we expecting that to set up the incubator center also, sir. आपने और इंस्टीट्यूट में इंक्यूबेटर सेंटर एस्टैब्लिश करवाए हैं। थैंक यू भारद्वाज साहब, थैंक यू शिव शंकर जी। आई होप वी कैन होप फॉर द बेस्ट। हम सब मिलके काम करेंगे और अच्छा काम हो पाएगा। हाँ जी, शिव शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज रितिका। तो सभी का आभार। मैं अंत में बस 2 मिनट का समय लूंगा, फिर इसको हम समाप्त करेंगे कार्यक्रम का। तो एक अच्छा भव्य कार्यक्रम हमारे बीच में हुआ। ये हमारा पहला प्रयोग टेक्निया के साथ में था फाउंडेशन का। तो सभी वक्ताओं का, सभी ऑर्गेनाइजर्स का बहुत हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने पहली ही कॉल में अपना समय देने का हमें आश्वस्त किया। और एक कॉलेज के विद्यार्थियों को भी एक आगे के लिए दिशा मिलेगी कि हम जितना इस एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ को समझेंगे तो हम कुछ देश के लिए कर पाएंगे। डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब प्रोवाइडर। हम इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम कुछ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। तो आशा है आप सब लोग आज का कार्यक्रम इसको थोड़ा सा अच्छे पॉजिटिव वे में लेंगे। किसी के कुछ प्रश्न हो, आप व्यक्तिगत, आप कॉलेज की टीम से या हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। किसको कुछ मेंटरिंग की आवश्यकता हो, कुछ डिफिकल्टी हो, तो हम बिल्कुल, हमारी फाउंडेशन उस पर प्रयासरत रहेगी पूरी। तो ये हम स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल ओपन है। आप निश्चित होके आप हमसे या कॉलेज की तरफ से संपर्क कर सकते हैं। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन हो? संजीव भारद्वाज जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हमारे फाउंडेशन के एक फाउंडर मेंबर है, उनकी प्रेरणा से हम चला रहे हैं। संजीव जी अपने रोहिणी के ही उनका निवास है, संघ में प्रचारक रहे वो रोहिणी जिले में, और अभी वो उत्तराखंड बीजेपी के जो अपने माननीय संगठन मंत्री जी अजय जी, उनके सहयोगी भी नाते उनका काम भी देख रहे हैं। तो पिछले वर्ष ही हमने फाउंडेशन का ये हमने इनिशिएट लिया है। अभी 5 राज्यों में इसका काम चल रहा है। कुछ 4 प्रकोष्ठ हमने इसमें सोचे हैं, पर्यावरण, एंटरप्रेन्योरशिप, अपना ये एजुकेशन का और वुमेन एम्पावरमेंट। 4 प्रमुख इसकी इकाइयों के रहेंगे। तो धीरे धीरे हमारा जो लक्ष्य है ये है कि हम जितना हम युवाओं को अप्रोच कर सके, उनको एक दिशा दे सके। इस फाउंडेशन का इतना ही मोटिव है कि हम जितना प्रयास हो सकते हैं राष्ट्र भक्ति में अपना योगदान देने का, हम उतना प्रयासरत रहेंगे। सभी वक्ताओं का फिर से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहे, कुशल रहे और अध्ययन को मत छोड़े, रिसर्च करें, मार्केटिंग करें। यही एक मूल मंत्र है सक्सेस होने का। फेलियर्स होंगे नो डाउट, पर उसको आगे बढ़ाते रहे, उसको पीछे मत हटे उस फेलियर से। सभी को नमस्कार। Due to mute, Ritika is not able to unmute herself. Now I would like to call Dr. Ashutosh Vajpayee. He is the HOD of MBA department. Please Ashutosh sir, proceed. तो सभी को प्रणाम मेरा। आज का दिन 9 जून 2021 बहुत ही बढ़िया दिन रहा आज का, कि एक ही प्लेटफॉर्म पे इतने बढ़िया लोग और इतने अच्छे थॉट मिले हमें आज के दिन। बहुत अच्छे थॉट मिले। एंड गुड मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था, नाउ इट्स गुड आफ्टरनून। I am Dr. Ashutosh Vajpayee and I am here to present the vote of thanks for today's webinar on interactive session with successful entrepreneurs and leaders. First of all, I would like to thank our guest speaker, Dr. Abhishek Tandon ji, for delivering and enlightening us with knowledge for students of and faculty of Technia, Delhi. Today's lecture was full of knowledge and interesting things. It gave deep insight into the topic and also revealed some interesting facts regarding the success of entrepreneurs. I am pretty sure that this precious knowledge that Aradhana Bharatwal Bahanji gave us will definitely help us in our studies and future. Once again, I thank Devi Chandralekha Bahanji for taking out time from his busy schedule and enlightening us with the knowledge. Thank you so much, sister. Thank you. And the most important, the point where Mr. Dinesh ji told us about the successful entrepreneur and leaders was really informative. And last but not the least, our chairman sir, he briefed each and everything. उन्होंने सभी चीजों को बहुत ही कम शब्दों में पिरो करके हमारे स्टूडेंट के सामने रखा। और मैं उनके पॉइंट जरूर बोलूंगा कि काम को अपनी रुचि के अनुसार करें। बहुत अच्छी बात बोली कि if a man is given a job,
he can do and he has interest in that job, then there is no limit of his progress. मैं कहता हूँ ये स्टेटमेंट हमारे चेयरमैन साहब का बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा स्टेटमेंट दिया सर ने। कर्मयोगी और पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा, कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और टाइम मैनेजमेंट, जो भी सक्सेसफुल आदमी है उसने अपने टाइम को मैनेज किया है, तभी वो सफलता की ऊंचाई पे पहुंच पाया है। और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसके लिए मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। अभी मैं बुक पढ़ रहा था, तो कोरोना टाइम पे तबीयत ठीक नहीं थी, तो बुक्स बहुत अच्छी फ्रेंड रहती हैं। तो वहां मैं पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़ा होटल था, वहां पे हर आदमी अपना मैनेजर बैठा हुआ है और जो काम जिसको दिया गया वो अपने स्टाफ को अपने ऑफिस में बड़ा सा बैठा हुआ है। और वहां पे एक आदमी टॉयलेट गया, तो जैसे वो टॉयलेट में एंटर करता है तो वहां पे एक आदमी बोलता है, जो उसको देखभाल करता था उसकी, बोलता है वेलकम सर, वेलकम इन माय ऑफिस, आपका स्वागत है मेरे ऑफिस में। तो देखिए यहाँ काम करने कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप जिस भी काम को करो उसको सोच के करो कि मेरा काम है और उसको पूरी तन्मयता से करना है। बहुत बढ़िया बात। और काम को शुरुआत करें, स्वार्थी ना बने, और उद्देश्य तो सबका यही है कि सबको खुश रखें। और चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छे शब्दों के साथ में हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया, और वो हमेशा ही करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज किया उन्होंने, हमेशा ही करते हैं, फैकल्टी को भी, स्टाफ को भी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक आवर डायरेक्टर सर डॉक्टर अजय कुमार for giving permission to organizing this webinar session and inviting Dr. Abhishek Tandon ji, Miss Anuradha Behan ji, Devi Chandralekha Behan ji, Dinesh ji, and because of some reasons Hansraj ji could not connect because of some technical problem. And to conduct it, I want to thank the whole Technia team who really worked hard to make this event successful. Also, thank you all the students, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद for paying your attention and learning. And I am sure आप सभी लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे। हर स्पीकर के, स्पेशली चेयरमैन साहब के पॉइंट्स के नोट्स बनाए हैं, तो सफलता आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। I must mention our deep sense of appreciation for Dr. Rashmi Gujarati for her efforts. And I would like to express our sincere thanks to our Honorable Chairman Sir, Dr. R.K. Gupta, for giving full support and encouragement. And I wish to express my gratitude to Dr. Jitain, Mr. Anmol, and Shiv Shankar Bhai ji, and Ritika Behan ji for providing technical support. और बहुत ही अच्छा कनेक्ट किया आप लोगों ने आज यहाँ पर। And we also would like to acknowledge our gratitude to Almighty God. And finally, I would say कि focus on your goal, और अपने गोल को अपने सामने रखें, उसके लिए काम करें। केवल आपको वही दिखाई पड़ना चाहिए जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती थी। एंड स्पेशल थैंक टू संस्कृति यूनिवर्सिटी, ऑल द एसोसिएट्स, विजन, एंड whoever is directly or indirectly attached to this webinar. सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने में। और मैं चाहूंगा शिवशंकर जी आप आगे से जुड़े रहें। डॉक्टर रश्मि, आपका प्रयास हमेशा रहता है कॉलेज की ग्रोथ के लिए, एंड विद द सपोर्ट ऑफ चेयरमैन सर, उन लोगों के बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दी चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर। एंड स्पेशल थैंक टू डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, वो भी कंटिन्यूअस एफर्ट किया करते हैं IUPAC में, और चाहते हैं कि हमारा कॉलेज भी मापदंडों को आगे, उसके भी आगे बढ़े जा करके। एंड सर, विद दिस वर्ड आई स्टॉप हियर, एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much, sir. And from my side and from Technia Group of Institution, I give a big thanks to my all speakers, organizing team, whole staff, Mr. Shiv Shankar ji, and my big thanks to our chairman, sir, Dr. R.K. Gupta, our director, sir, Dr. Ajay Kumar, behind of this organizing team, all with the all support, we have conducted this program successfully. And all speakers have given us a very informative information, and I wish that our student will follow that, and in future they will be on that top points. Thank you very much from Technia Group of Institution, from the staff of Technia Group of Institution. Thank you very much, sir.